We are actually reading and studying and meditating about how to come out of financial trouble. हम ये बात को सीख रहे हैं कि किस तरीके से बुरी आर्थिक अवस्था से बाहर निकली जाए, Or how to break the backbone of poverty in our या lives. गरीबी की रील की हड्डी को किस प्रकार हम अपने जीवन से तोड़ सकते। Today I want to encourage each and every one of you to listen and re-listen these messages so that you can break the power of poverty over your life. और आज मैं चाहता हूं कि आप इस संदेशों को बार बार सुनिए, सप्ताह में कई बार को इसी संदेश को सुनते रहिए ताकि आप विजयी हो सके। Because many times we underestimate poverty because we have a misunderstanding about poverty. क्योंकि कई बार हम गरीबी को बहुत कम समझते हैं, उस ताकत को नहीं समझ पाते क्योंकि हम सही ज्ञान उस विषय में नहीं रखते। The greatest misunderstanding about poverty is we always think poverty is in our purses and bank balances. और सबसे बड़ी गलतफहमी गरीबी के विषय यह है कि गरीबी जो है हमारे बटुए में या हमारे बैंक अकाउंट में है, But poverty is in our mind. लेकिन गरीबी हमारे मनों में है। It actually doesn't depend upon the money you have. और ये सचमुच आपके पास कितना पैसा है इस पे निर्भर नहीं है। That is why these messages are very important to change your mind according to the word of God. और इसी कारण ये जो संदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने मन को बदल सकें। That is why people who has little money, they become complacent and come and strike a plateau in their life and they never grow and they even nosedive and become poor afterwards. और इसी कारण जिन लोगों के पास कम पैसा है वो अपने जीवन में ऐसे एक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वो कभी भी बढ़ोतरी नहीं पाते, बल्कि वो ऐसी छलांग लगाते हैं जहां से और गरीबी में फंस जाते हैं। I also want to say one more thing. These are the specific words for the people in the house of prayer or connected to the house of prayer. और ये विषय भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो संदेश है, ये सारे संदेश खास तौर पर जो हाउस ऑफ प्रेयर में सदस्य हैं या हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए है। Somewhere these messages need to really seep into our system, our livelihood, our lifestyle, our day-to-day life and decision making so that we can really escape poverty. कहीं तो ये सारी जो संदेश है ये सचमुच हमारे मनस्थिति में, हमारे जीवन शैली में प्रवेश कर हमारे जीवन को ही बदलना चाहिए। You cannot break poverty in one night. आप एक रात में इस गरीबी को तोड़ नहीं सकते। You have to make consistent effort and steadfast decision making and disciplined life to really break poverty. नियमित तौर पर अपने आप मन को बदलना होगा, अपना निर्णय सही तरीके से लेना होगा और सही तरीके का जीवन शैली आपको बिताना होगा। Many of us, we want a quick fix solution for coming out of poverty. That's why we are not able to be successful. हम में से कई चाहते हैं कि तुरंत ही कुछ काम ऐसा हो जाए जिससे हम गरीबी से बाहर निकल जाए, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। Nothing wrong to find a quick fix solution, but it doesn't work in finances. और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप तुरंत काम करने वाली कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, लेकिन आर्थिक अवस्था के लिए ये काम नहीं करता। So this message is actually a continuation of the 5 messages which are preached before. तो ये जो संदेश है जो पिछले 5 रविवार से हम जो प्रचार कर रहे हैं उसके आगे का भाग है। So if you have not digested those things, you will never digest this also. तो अगर वो पिछले संदेशों को आपने पचाया नहीं है तो ये संदेश भी आपको पचेगा नहीं। But still I will try to be as simple as possible so that if you are joining today, you can understand. But still I would encourage you to listen to the previous messages. और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना सरल हो सके मैं इसे समझाऊं और आपको ये समझ में आए। One thing about God is we can never motivate God to do anything in his life. और परमेश्वर के विषय एक बात सत्य यह है कि हम परमेश्वर को कभी प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि वो अपने जीवन में कुछ कार्य करें। We can motivate human beings by telling certain things, giving some gifts or giving some prizes or rewards, but you cannot motivate God. Please understand this. हम इंसान को तो प्रोत्साहित कर सकते हैं कुछ अच्छे शब्दों के द्वारा या कुछ भेंट देकर, उन्हें तोहफे देकर हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं कर सकते। You cannot make God work by doing some things. हम परमेश्वर को कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कुछ काम अपने आप कर। See, rabbits, if you show a carrot, it will run. खरगोश को अगर आप कैरेट दिखाते हो तो वो उसकी तरफ दौड़ेगा। Some people, if you show money, they will run. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे दिखाए तो वो उसके पीछे भागेंगे। What you will show God?
to motivate him. लेकिन आप परमेश्वर को क्या दिखाओगे जिससे वो प्रोत्साहित हो जाएंगे? See, today many people want to motivate God to rise up and help them. आज बहुत सारे लोग ये इसी प्रयास में रहते हैं कि वो परमेश्वर को प्रोत्साहित करें और वो उठ खड़े हो जाए और उनकी सहायता करें. Some people think, if you shed tears, God will be motivated to help you. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो आंसू बहाए तो परमेश्वर उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं. Some people, they hurt themselves and they think that God will be motivated. कुछ लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं और वो समझते हैं कि परमेश्वर उससे प्रोत्साहित हो Some जाएंगे. people fast and pray to motivate God. कुछ लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं ताकि वो परमेश्वर को प्रोत्साहित कर Some सके. people pay tithes to motivate God. कुछ लोग दशमांश देते हैं ताकि वो परमेश्वर को प्रोत्साहित कर सके. You cannot motivate God. आप परमेश्वर को प्रोत्साहित नहीं But कर then how सकते. God functions? तो फिर परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है? God can make you a billionaire. परमेश्वर आपको लखपति बना सकता है. Let me repeat. God can make each and every one of you into a billionaire in this earth. परमेश्वर आप में से हर एक को करोड़पति बना सकता है इस पृथ्वी पर. But how to make God to do that to you? लेकिन परमेश्वर को कैसे हम कहें कि वो ये कार्य करें? There is one thing which motivates God. परमेश्वर को एक ही वस्तु है जो If you प्रोत्साहित read करता this है. Bible, you can find that secret out. अगर आप इस बाइबल को पढ़ते हो तो उस रहस्य को आप पा सकोगे. I am teaching from this Bible because it teaches so clearly about every subject on this earth. मैं इसी बाइबल से सिखाता हूं क्योंकि हर एक विषय जो इस पृथ्वी में है उस विषय के बारे में ये बाइबल सिखाता है. You can never find another book which is as clear as the Bible, as the Holy Bible. और आप और कोई किताब नहीं पाओगे इस पृथ्वी पर जो इतना साफ आपको किसी भी विषय में बताएगा जिस प्रकार बाइबल बताता है. We can call that as a practical Bible. और उसे हम प्रैक्टिकल बाइबल के नाम से बुला सकते हैं. Day-to-day Bible. और हर दिन प्रतिदिन का बाइबल. Okay. In this place, God gets motivated or energized only when you remind Him of your covenantal understanding you have with Him. और परमेश्वर को प्रोत्साहन तभी मिलता है जब आप परमेश्वर के साथ जो वाचा है उसे याद दिलाते हो. You please understand this. This is the right understanding of God. और यही सही समझ है परमेश्वर के विषय. You cannot motivate Him by showing Him any temporal things. आप परमेश्वर को किसी भी तात्कालिक वस्तु को दिखाकर उसे प्रोत्साहित नहीं कर सकते. By wearing white and white, you cannot motivate Him. केवल सफेद वस्त्रों को धारण करके आप परमेश्वर को प्रोत्साहित नहीं कर सकते. Or rolling on the ground, you cannot motivate Him. या जमीन पर आप अगर उधर लेट जाते हो और रेंगने लगते हो तो उससे वो परमेश्वर प्रोत्साहित नहीं होते. You can only motivate Him by reminding Him that you are a covenantal partner with God. आप परमेश्वर को तभी प्रोत्साहित कर सकते हो जब आप परमेश्वर को याद दिलाते हो कि आप परमेश्वर के साथ वाचा के भागीदार हो. Always understand this. इस बात को हमेशा समझे. Because if you read the Bible from cover to cover, you can always see people who are successful in their lives, who became billionaires in their lives, or who became very, very influential in their lives. They always connected with God in a covenantal way or walked in an established covenant. That is how they allowed God to influence them and through them the whole world. That's how they did it. अगर आप इस बाइबल को शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़े और किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसमें इस बाइबल में लिखा है उसके जीवन को पढ़े तो आप जानोगे कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने इसीलिए काम किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने वाचा के बारे में याद दिलाया और उनके जीवन को उसके द्वारा आशीष मिली और उनके द्वारा सारे जगत को आशीष मिली. That is how it was. Nehemiah is an example. Zachariah is an example. Daniel is an example. David is an example. Joshua is an example. Moses is an example. Isaac, Jacob, Abraham, you can see they made the covenant or they linked with the covenant. और आप नेहमा के जीवन में देखें या दानियल के या दावीद के अब्राहम के या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्तियों के जीवन में अगर आप देखें तो या तो उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बनाया या किसी वाचा के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया. There is no use crying. और रोने का कोई अर्थ नहीं है. There is no use listening to so many messages every day. और हर दिन इतने सारे संदेशों को सुन के भी कोई मतलब नहीं है. There is no use of any effort. और ऐसे कोई व्यर्थ का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है. It can satisfy us. वो हमें तृप्त करता है. See, religion satisfies us. It doesn't satisfy God. धर्म जो है वो हमें तृप्त करता है परमेश्वर को नहीं.
Every religion, when you do that formalities of the religion, the traditions of the religion, you feel satisfied. You feel you have done a great job. हर एक धर्म में जब हम वो कर्म करते हैं तो हमें बहुत तृप्त महसूस होता है, हमें लगता है कि हमने बड़े काम किए हैं। There was a church near my house. Everybody goes there without chappal. मेरे घर के पास एक कलीसिया थी जहां पर लोग बिना चप्पल या जूते पहनकर वहां चलकर जाते थे। Some people go there and shave their heads and come back. और कुछ लोग वहां जाते हैं और अपना मुंडन कर वापस लौटते हैं। People are genuine. There is no hypocrisy in that people who are doing that. और जो लोग ये सब कर रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, वो अब पूरे सच्चे मन से वो कर रहे हैं। It gives them a lot of satisfaction that they have done something for God. और ये उन्हें बहुत तृप्ति का एहसास दिलाता है कि उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम किया। But God is not motivated by that. लेकिन परमेश्वर इससे प्रोत्साहित नहीं होता। So, one of the things which we can remind God about the covenant is paying your tithe. और एक जो वस्तु जिससे परमेश्वर को आप अपने परमेश्वर के वाचा के बारे में याद दिला सकते हो, वो है, एक मार्ग है कि आप अपना दशमांश दें। Now there are many people who don't want to talk about tithe, who don't talk about tithe, and who accuse the people who talk about tithe. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो दशमांश के विषय बात करना नहीं चाहते और जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें दोषी ठहराते हैं। And some people, they take the Bible and prove why tithe should not be paid. और कुछ लोग बाइबल को ही लेकर यह साबित करना चाहते हैं कि क्यों दशमांश नहीं देना है। I really don't want to talk to any one of them. I am talking to those people who are open to pay tithe. और मैं ऐसे किसी भी लोगों से मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग अपने खुले मन से आते हैं कि वो दशमांश देना चाहते हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। Because tithe is not a strategy of a pastor, it is the covenant of God between God and man. और क्योंकि दशमांश जो है किसी पासबान की योजना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर और इंसान के बीच। Let us go by the word what the Bible says. हम वचन के हिसाब से जाए, जो बाइबल हमें कहता है उस हिसाब से बढ़े। Okay, I am really talking to the genuine people who are thirsty for the truth and the reality, and they really want to break the backbone of poverty upon their families. I am talking to such people. मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने घरों में, अपने परिवारों से गरीबी को निकाल फेंकना चाहते हैं। God is not interested in the 99 righteous who know the Bible. God is interested in that one sinner who can beat on his chest and say, I am wrong, I want to change in my life. और परमेश्वर वो जो 99 धर्मी लोग हैं उनके विषय में वो रुचि नहीं रखता, बल्कि वो जो एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं पापी हूं प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं, मैं मन फिराता हूं, उस एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर सोचता है। This message is not for the overeducated, ignorant believers who are actually fools. This message is for the thirsty people who are thirsty for the truth of God through the word of God. ये संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि उन्होंने अधिक बुद्धि प्राप्त कर लिया है लेकिन फिर भी अज्ञात बने हुए फिरते हैं, लेकिन उन प्यासे लोगों के लिए है जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। The first thing you need to do when you get an income is to return back what belongs to God. जो पहला काम आपको करना है जब आपको तनख्वाह मिलती है किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, वो है कि आप पहले परमेश्वर को लौटाए जो परमेश्वर का है। Okay, God has kept the principle of tithing in every blessing he gives us. परमेश्वर ने दशमांश देने की आशीष हर एक वो आशीष में रखा है जो हमें उसने दिया है। That is called as the law of Genesis. और वो उत्पत्ति का सिद्धांत है। Let us turn to Genesis chapter 1 verse 11. उत्पत्ति 1:11 की तरफ बढ़े। Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit, according to its kind, whose seed is in itself on the earth, and it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। In the original translation, it is not its kind, it is saying his kind. और जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है उसमें इस प्रकार नहीं लिखा है कि उसके प्रकार का, बल्कि परमेश्वर के प्रकार का। His kind means it is said to the human beings. और जो his kind लिखा है वो इंसान के विषय लिखा है।
Okay, so we should understand the seed always comes with the fruit. हमें हमेशा समझना है जो बीज है वो हमेशा फल के साथ आता है। So please understand, tithe is a part of every fruit which comes to you. जो दशमांश जो है हर एक वो जो फल जो आपके पास आता है उसके साथ ही आता है। We have sweet mangoes in this season. और हमारे इस ऋतु में बहुत मीठे आम मिल रहे हैं। Every mango comes with a fruit and a seed. हर एक आम में फल होता है और बीज भी होता है। Fruit is for our consumption, seed is for us to give it back to the place from where it came from. फल जो है उसे हम खाते हैं लेकिन जो बीज है उसे वापस लौटाकर जहां से वो आया है वहां पर वापस लौटाते हैं। Please understand this concept very clearly. इस विषय को आप विशेष रूप में समझ जाए। There is always a part which you will not touch. हमेशा एक भाग है जिसे आपको छूना नहीं है। Okay, that has to be given back. Some part like that, every income, business income or professional income or any other income, you have to, there are two parts to it. One is your part, one is God's part. और किसी भी प्रकार की तनख्वाह आपको क्यों ना मिलती हो, मुनाफा आप क्यों ना कमाते हो, उसमें दो भाग होता है, एक है आपका भाग और दूसरा है परमेश्वर का भाग जो उसे वापस लौटाना है। I'll tell you, in modern governments, there is a part the government will also take. और आज के जो हम गवर्नमेंट है वो उसमें एक भाग गवर्नमेंट का भी होता है जो वो वापस लेता है। If you don't pay the money belonging to the government, they will arrest you and throw you in the jail. अगर आप गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं लौटाते हो जो गवर्नमेंट के हक का है तो वो आपको बंदी गृह में डाल देंगे। But if you don't pay tithe and talk like a educated Bible scholar, God will not do that to you. He will still bless you. और लेकिन अगर आप ऐसे एक बहुत बाइबल के विषय बुद्धिमान बनने वाले व्यक्ति के समान बात करते हुए अगर आप दशमांश नहीं देते हैं तो परमेश्वर आपको बंदी गृह में नहीं डालेगा लेकिन वो आपको आशीष देगा। If you find any Bible scholars talking ill of tithe or people who receive tithe, you bring them to us. We will deal with them and handle them. अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को आपका सामना होता है जो दशमांश में विश्वास नहीं करते और जो दशमांश देने वाले लोगों के खिलाफ बात करते हैं उन्हें आप हमारे पास लेके आए, हम उनको समझाएंगे। These ignorant idiots are blind guides. I'll tell you something, they will put you in a ditch. They will fall in a ditch and they will put you also in a ditch. ये अंधे अज्ञात लोग स्वयं तो गड्ढे में गिर रहे हैं और वो आपको भी खींचकर उस गड्ढे में गिराएंगे। They will take their Bible and fall down inside because they were Bible scholars. और ये सब अपने आप को जो बाइबल स्कॉलर के नाम पर अपने आप के घोषणा करते हैं वो स्वयं उस गड्ढे में बाइबल के सहित गिरते हैं। Bring those Bible scholars to the house of prayer. We will deal with them. और इन बाइबल स्कॉलर्स को आप हाउस ऑफ प्रेयर में लेके आए, हम उनके साथ सही व्यवहार But करेंगे। if you are connected in the house of prayer, I want you to take this as the word of God which is reaching you to break the backbone of poverty in your life. और अगर आप हाउस ऑफ प्रेयर के सदस्य हैं तो आप ये इस बात को समझ ले कि परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में आया है ताकि गरीबी की रील की हड्डी को तोड़ सके। Let's turn to Malachi chapter 3 verse 10. मलाकी 3:10 को देखें। Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। If you read verse 9, it has another interesting statement. 9वें वचन को अगर आप पढ़े तो और भी रुचात्मक एक वचन लिखा है। Malachi chapter 3 verse 9. मलाकी अध्याय 3 उसका 9वां वचन। Yes, it says, verse 8 says, will a man rob God? Yet you have robbed me. You have robbed me in tithes and offerings. 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। No, धोखा should not be the right word. लूटा है। चोरी। परमेश्वर को हम चोरी कर सकते हैं क्या? यदि टाइथ नहीं दिया ना हम चोर बनते हैं। Okay, so anybody begins, when he begins to rob God, slowly he will begin to rob you also. और जो व्यक्ति परमेश्वर से चोरी कर रहा है वो धीरे धीरे आपके जीवन में भी चोरी करेगा। So be careful about those guys who don't pay tithe. If you encourage them inside your halls, they will rob you also. तो आप इन लोगों से बहुत संभले रहें क्योंकि अगर आप इन लोगों को अपने घरों में लाते हो तो वो आपके घरों से भी चोरी करेंगे। Because they themselves are robbing God, then that means they are a proven robbers. क्योंकि वो स्वयं तो परमेश्वर के घराने से चोरी कर रहे हैं तो वो तो ऐसे एकदम बने हुए चोर There are हैं। many Bible scholars who are actually robbers.
बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स भी ऐसे हैं जो सचमुच तो डकैत जैसे हैं। So if you allow them inside your halls, inside YouTube videos, I tell you, your house will be robbed. अगर आप इनको अपने घर में आप दाखिला देते हो YouTube वीडियोस के द्वारा, तो वो आपके घरों को वो डकैती कर देंगे। I don't allow such people to talk to me through my YouTube channel. और मैं ऐसे लोगों को मुझसे बात करने की अनुमति ही नहीं देता कोई भी YouTube वीडियो के माध्यम से। I only listen to those people who pay their tithe. मैं केवल उन्हीं लोगों की बातों को सुनता हूं जो दशमांश देते हैं, Because I am covenantally related with my God. क्योंकि मेरे परमेश्वर के साथ एक वाचा है। So if you want to covenantly unite with your God, I tell you, you should pay your tithe. तो अगर आपका वाचा है परमेश्वर के साथ, तो आपको अपना दशमांश देना है। When you pay your tithe, you remind God you are a covenantal partner. जब आप अपना दशमांश देते हो तो आप परमेश्वर को याद दिलाते हो कि आप वाचा के भागीदार हो। When you pay your tithe to your father or to your mentor, you actually tell God, tell God, I am a covenantal partner with you. जब आप अपने दशमांश अपने पासबान या अपने अगुवे को देते हो, अपने आत्मिक पिता को देते हो, तो आप परमेश्वर को याद दिलाते हो कि मैं परमेश्वर तेरे साथ वाचा के भागीदार हूं। That is the only way you can motivate God. वो एकमात्र रास्ता है जिससे आप परमेश्वर को प्रोत्साहित कर सकते हो। Assuming that you all are paying your tithe, ऐसे I में- proceed with my message. ऐसे में मान लेता हूं कि आप सब अपने दशमांश को दे रहे हो और अपने संदेश में मैं आगे बढ़ रहा हूं। Okay, two more points about tithe is not 1/10, it is first tenth of your salary. और दशमांश के विषय एक खास बात कहता हूं कि वो 10 में से 1 भाग नहीं है, बल्कि आपके जो 10 भाग है उसका पहला भाग है। Please understand this very clearly. It is the first tenth of your income is called as tithe. आपके जो तनख्वाह है उसका पहला भाग जो है वो उसी को दशमांश कहते हैं। And I give it to a person with whom I have a relationship. और मैं उसी को देता हूं जिस व्यक्ति से मेरा एक रिश्ता है। Because my father Abraham gave it to his pastor Melchizedek. क्योंकि मेरे पिता अब्राहम जो है उन्होंने अपने आत्मिक पिता मलकीसदेक को दिया है। That is my example of tithing. वो मेरे लिए दशमांश देने का एक अच्छा उदाहरण है। There is no other example in the Bible about tithing. और कोई उदाहरण दशमांश के विषय दिया नहीं है बाइबल And में। one more thing about tithing is not for all people. और एक और विषय जो दशमांश के विषय यह है कि दशमांश सारे लोगों के लिए नहीं है। Tithing is not for the Jewish people. और यहूदी लोगों के लिए दशमांश नहीं है। Tithing is only for Abraham. दशमांश अब्राहम के लिए है। It was Abraham's secret of becoming a billionaire. और ये अब्राहम का रहस्य था, जिस मार्ग से जिस तरीके से वो करोड़पति बना। He taught that secret to Isaac. He taught that secret to Jacob. और उसी ने वो रहस्य इसहाक को बताया और उसी ने वो रहस्य याकूब को भी बताया। They became billionaires. और वो करोड़पति बन सके। And their future grandchildren, they saw them and they were very smart enough to put that into their law to make the whole nation of Israel to tithe. और वो उनके जो नाती पोते थे या उनके जो पीढ़ी में अन्य लोग आए, वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस रहस्य को देख लिया और उन्होंने अपने धर्म में ही वो स्वीकार लिया और अपने राज्य के हर एक व्यक्ति को वो पालन करने का उन्होंने आदेश दिया। Because they were children of Abraham. क्योंकि वो अब्राहम के ही संतान थे। They carry his DNA. वो उसी के डीएनए को लेकर Then चलते why हैं। not we carry his money also? तो क्यों नहीं हम उनके पैसे को भी लेकर They are चले। smart people, so they did it. वो बुद्धिमान लोग थे तो इसलिए उन्होंने वो कर दिया। They made it a law and made everybody to pay tithe. In fact, they were all blessed and blessed only. और उन्होंने ये कानून ही ऐसा बना दिया और उसी कारण वो सभी को वो सारे लोग दशमांश देने लगे और वो केवल आशीष ही पाते रहे और पूरी तरीके से आशीष पाते You रहे। agree, you don't agree, they are blessed only. आप मानो या ना मानो, लेकिन वो पूरी तरीके से आशीष पाए हुए लोग हैं। See, many people don't agree the truth. बहुत से लोग सच्चाई के साथ सहमत नहीं They हो will पाते। think, hey, I am more smarter than उन्हें you. लगता है कि मैं अधिक बुद्धिमान हूँ। Leave them alone. Let's उन्हें go अकेला back. छोड़ दो। So tithing is very important. You tithe. If you are not tithing, you are becoming a robber. You are already a robber. तो दशमांश जो देना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दशमांश नहीं दे रहे तो पहले से आप डकैत बन चुके हो। Okay, so this tithe brings 7 blessings inside your life. और ये जो दशमांश है ये आपके जीवन में 7 आशीष को लेकर आता है। Okay, it brings 7 blessings inside your life. और 7. 7 आशीष आपके जीवन में वो लेकर आता है। This 7 is actually a core of 70 other blessings.
और ये जो 7 आशीष है, ये सचमुच 70 जो अन्य आशीष है उनके मुख्य विषय हैं। Yeah, these 7 blessings becomes your birthright if you are a tither. और ये जो 7 आशीष है, ये आपका जन्म सिद्ध पाया हुआ अधिकार बन जाता है अगर आप दशमांश देते हो। That is why I am preaching this message as a 6th message, and I preach 5 messages before it, because there are other preconditions for you to get into these blessings. और इसी कारण इस संदेश को मैंने 6वां संदेश रखा है, और इससे पहले 5 अन्य संदेश मैं दे चुका हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने से पहले 5 अन्य ऐसे कुछ विषय है जो अधिक महत्वपूर्ण है।